Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter Rights in Political Theory, and under this chapter we were discussing legal rights and the state, and this is the topic which deals with the relationship between the state and the individual, because whenever we talk about rights are claims which are always directed towards the state, and rights become important for us when it is given legal recognition. When the state give its recognition to any right, then we become able to enjoy the right. If the right has no legal authority, then we will not be able to enjoy the right. So this role of the state is very important regarding the rights, है ना, कि जब भी हम rights की demand करते हैं, these rights must be legally recognized by the state. But at the same time, it does not mean कि अगर state किसी claim को, whatever is being claimed by people, is not getting legal sanction, it is not getting legal acceptance by the state, it does not mean कि that right has no value. It happens many times. It happens कि any type of right is not there in the list of the legal rights, but people start claiming that right, and the state accept that right as state give the legal authority to these rights. Like we have discussed this कि in our original constitution there was no provision for right to livelihood, but people started claiming this right, and when there was claim from the people for this right, we see that the people were given this right by the judiciary through the interpretation of the right to life. That right was included in the fundamental rights of the people. तो लीगल सैंक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इट डज़ नॉट मीन कि हमें वही राइट्स मिलेंगे जो कि स्टेट चाहता है. हमें वो राइट मिलेंगे जो हम चाहते हैं. क्यों? क्योंकि हम जिस राइट के लिए भी हम क्लेम करेंगे, अल्टीमेटली ये भी हो सकता है कि वो राइट हमें ना भी मिले, बट उस राइट को कई बारी एक्सेप्ट करना पड़ता है स्टेट को, क्योंकि लोगों की ये डिमांड है. तो ये जो हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, इट्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड इंडिविजुअल. जो राइट्स हैं वो इंडिविजुअल्स की हैं, और वो राइट्स हमें किसके अगेंस्ट मिल रहा है, वो राइट्स हमें किसकी तरफ से मिल रहा है, वो राइट्स हमें स्टेट दे रहा है. बट स्टेट हमें कोई वो नहीं कि हमें वो कुछ ऐसा चीज़ दे रहा है कि हमें उसके लिए बहुत ऑब्लाइज होना चाहिए. नहीं, दीज राइट्स आर क्लेम्स. ये हमारे क्लेम्स हैं. अगर नहीं देगा स्टेट तो हम उसके लिए लड़ेंगे, स्ट्रगल करेंगे. तो इट्स नॉट कि हम पर कोई दया हो रही है अगर हमें राइट्स मिल रहे हैं. तो ये हमारे अधिकार हैं और हमें मिलने चाहिए. एंड वन मोर थिंग इज़ देयर कि वेन एवर वी टॉक ऑफ राइट, तो वी expect that the state has some obligation in order to fulfill these rights. जो कुछ भी हमारे rights हैं, हम जब भी उसकी बात कर रहे हैं तो हम ये समझ के बात करते हैं कि जो state है उसके कुछ obligation होते हैं regarding fulfillment of the right. अगर हमें कोई right मिला through the constitution, through the judicial interpretation और through the law of the parliament, तो उस राइट के अकॉर्डिंगली स्टेट के कुछ ऑब्लिगेशंस हो जाते हैं ताकि वो राइट जो हमें मिला है उसको फुलफिल किया जा सके. जैसे हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देयर वाज नो प्रोविज़न फॉर राइट टू एजुकेशन, बट आफ्टर so many years we got this right to education as fundamental right. So now I, as a citizen of India, expect that it is the duty of the government to fulfill the obligation
regarding whatever is required to fulfill the right to education of all the people. और गवर्नमेंट ने जैसे इसके लिए क्या किया, जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स थे उसमें अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज तक के लिए एजुकेशन को फ्री एंड कंपल्सरी कर दिया फॉर द BPL पीपल. So the initiative has been taken by the state, and now the private schools, they also have to follow according to the policy of the state. Some private organizations like the non-governmental organizations may also come forward by they can also start giving compulsory and free education to the student. They can organize many type of scholarship programs for the students belonging to below poverty line. So what we see that in such case, in order to fulfill the benefits of the right, it is important that the initiative, it is not important but it happens, it is compulsory for the state to take initiative. The state takes the initiative, and then the other private players are instructed. They are also given instruction कि आपको भी इस तरह का follow करना है. तो but the initiative will always be taken by the state. And in this connection we have also seen that when we talk of right, it is suppose we talk of right to life. Okay, तो जब हम right to life की बात कर रहे हैं कि we are given the right to life by the constitution, तो ये right to life अगर हमें constitution ने दिया है तो ये state की responsibility बनती है. It is the responsibility of the state कि वो हमारे life को किसी तरह से injury होने से हमें बचाए. It is the duty of the state कि अगर कोई हमें हार्म करता है तो वो उसको पनिश करे. तो ये जो राइट्स होते हैं ये स्टेट के को बताता है कि उसको क्या करना है, क्योंकि हमें राइट टू लाइफ मिला है, इसलिए दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट आवर लाइफ. दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू पनिश दोज हु हार्म्स अस, है ना. तो एंड मोर ओवर वी सी कि राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि फिजिकली वी शुड बी प्रोटेक्टेड, बट राइट टू लाइफ के अंदर आज के समय में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं, लाइक राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, राइट टू क्लीन एयर. ऑल दीज आर अंडर द राइट टू लाइफ. क्योंकि हमें सिर्फ राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं हो रहा है कि वी शुड बी ओनली लाइफ होनी चाहिए, लाइफ की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. हाउ द क्वालिटी ऑफ द लाइफ विल बिकम गुड? It will become good by making the environment clean. तो this is also the responsibility of the state. तो state को क्या करना है ये बताता है rights. साथ ही साथ the rights also tells what the state is not supposed to do. क्या state को नहीं करना है ना, क्या करना है और क्या नहीं करना है. Both the things are there in the concept of right, in the idea of right. जब हम कहते हैं कि हमें राइट टू लाइफ है, इसका मतलब ये होता है कि द स्टेट कैन नॉट अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड. एंड मोर ओवर आफ्टर अरेस्टिंग एनी पर्सन व्हाट इज डन, द पर्सन इज प्रेजेंटेड बिफोर द magistrate within 24 hours. These are the rules which are given under the right to liberty. जो हमारा राइट टू लिबर्टी हमें मिला है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, उसमें दीज आर द प्रोविजंस कि कैसे हमारे राइट टू लिबर्टी को एंश्योर किया जाएगा. राइट टू लिबर्टी का मतलब ये है कि हमें कोई भी बिना वजह अरेस्ट, पुलिस नॉट कोई भी पुलिस हमें बिना वजह अरेस्ट नहीं कर सकती. इफ द पुलिस इज देयर टू इज कमिंग टू आवर हाउस टू अरेस्ट अस, देन इट मस्ट शो द वारंट, अरेस्ट वारंट. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द अरेस्ट? एंड अगर वो अरेस्ट वारंट के साथ अरेस्ट कर भी लेती है, उसके बाद उसको विद इन 24 आवर्स, अरेस्ट करने के 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पड़ता है जिसको भी उसने अरेस्ट किया है. एंड देन मजिस्ट्रेट विल डिसाइड कि जिस ग्राउंड पे अरेस्ट किया गया है दैट ग्राउंड इज रीजनेबल और नॉट. एंड इफ द मजिस्ट्रेट फाइंड्स कि नहीं रीजनेबल ग्राउंड नहीं है,
तो फिर उसको फ्री कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा. तो दिस इज द प्रोसेस कि स्टेट को क्या नहीं करना है. सो ऑल दीज आर वी कैन से राइट्स. जो भी राइट्स हमें मिल रहे हैं वो सभी हमें स्टेट पर एक तरह का वो लिमिटेशंस लगा रहे हैं, स्टेट को रोक रहे हैं. पावर्स, स्टेट तो बहुत पावरफुल होता है ना, सारे पावर्स स्टेट के पास होते हैं. स्टेट चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बट कुछ भी नहीं कर सकता है. क्यों? क्योंकि ये डेमोक्रेसी है और इस डेमोक्रेसी में हमारे पास राइट्स हैं, और स्टेट कितने भी अपने पावर को यूज़ करे वो हमारे राइट्स को हमसे छीन नहीं सकता है इलीगली. तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द इंडिविजुअल. To put it another way, our rights ensure that the authority of the state is exercised without violating the sanctity of individual life and liberty. So, what we find that there are two entities. Okay, one is state and another is individual. Okay, these are two entities, and state has authority. State is powerful. It exercises all powers in order to takes decisions. It formulate policies. Everything is done by the state. Okay, and individuals are there. Now we see कि we can't expect that the state should act in such a manner that it can violate the rights of the individual. State is powerful, yes, of course state is powerful, but state is not as powerful that it can curtail the rights of the individual. अगर हम स्टेट और इंडिविजुअल के बीच के रिलेशनशिप को देखें तो स्टेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. व्हाट इज विच इज मोर इम्पॉर्टेंट? इंडिविजुअल्स, दे आर मोर इम्पॉर्टेंट. अगर स्टेट है तो वो किसके लिए है? अगर स्टेट है तो वो इंडिविजुअल्स के लिए है. हम स्टेट के लिए नहीं है, स्टेट हमारे लिए है. दिस इज द मिसकंसेप्शन. कई बार इन मेनी टाइम्स पीपल थिंक लाइक दैट कि स्टेट जो है वो बहुत पावरफुल है, हम उसके सामने हमारे कोई पावर नहीं है, हम तो बिल्कुल कॉमन मैन हैं, कॉमन पीपल हैं. नो नो, दिस इज नॉट द केस. ऑलवेज कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड. स्टेट इज देयर ओनली टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स. जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इंडिविजुअल है. स्टेट के पास बहुत पावर है, लेकिन स्टेट को ये पावर दिया किसने? स्टेट को ये पावर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने. कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किसने? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने. तो अल्टीमेट सॉवरेनिटी लाइज विद द पीपल. इट इज द पीपल हु आर सॉवरेन. दिस सॉवरेन पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय द स्टेट, बट द सॉवरेन पावर लाइज विद द पीपल. तो स्टेट का जो काम है वो ऐसा, स्टेट अपने पावर को ऐसे यूज़ नहीं कर सकता है कि वो इंडिविजुअल के राइट्स को कर्टेल करे, इन्फ्रेंच करे, वॉयलेट करे. नो, दीज आर नॉट अलाउड. द स्टेट इज़ नॉट अलाउड टू डू ऑल दीज थिंग्स. हमारे जो राइट्स होते हैं वो स्टेट के पावर को लिमिट करता है कि स्टेट के पावर्स अनलिमिटेड नहीं हैं, बल्कि उन पे कुछ लिमिटेशंस लगे हुए हैं. एंड दीज लिमिटेशंस आर इन द फॉर्म ऑफ राइट्स ऑफ द पीपल. The state may be the sovereign authority. The laws it makes may be enforced with force. But the sovereign state exists not for its own sake, but for the sake of the individual. स्टेट के पास पावर है, स्टेट के पास अथॉरिटी है, स्टेट अपने लॉज बनाती हैं, लॉज को वो फोर्सफुली एनफोर्स कर सकती है. एवरीथिंग इज देयर, बट इट शुड ऑलवेज बी देयर कि जो इंडिविजुअल्स हैं दे आर द more important entity than the state, क्योंकि state का existence ही individual के लिए है. We can survive without the state for some time, but the state cannot survive without individuals. It is people who matter more, and it is their well-being that must be pursued
बाय द गवर्नमेंट इन पावर। जो हमारी जो भी गवर्नमेंट है उसको उसका जो मेन एम है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ एनी गवर्नमेंट, इट इज टू ब्रिंग वेल बीइंग ऑफ द पीपल, लोगों के का वेलफेयर करना, उनके वेलबींग को इंक्रीज करना। दिस इज द एम ऑफ द गवर्नमेंट। द रूलर्स आर अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन एंड मस्ट नॉट फॉरगेट दैट लॉज एग्जिस्ट टू एंश्योर द गुड ऑफ द पीपल। लॉज आर नॉट देयर टू शो द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट। स्टेट अपना स्ट्रेंथ को शो करने के लिए लॉ नहीं बनाता है। लॉ इसलिए बनते हैं ताकि हमारी लाइफ के जो रूल्स हैं वो इस्टेब्लिश हो सकें, हमारा लाइफ आसान हो सके। तो इंडिविजुअल इज़ द सेंटर, इंडिविजुअल इज़ द मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। स्टेट का इम्पोर्टेंस और इंडिविजुअल के इम्पोर्टेंस को अगर हम कंपेयर करें तो इंडिविजुअल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन द स्टेट, एंड दिस इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ इंडिविजुअलिज्म विच इज़ द मॉडर्न डे कॉन्सेप्ट। स्टेट को जब हम स्टेट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं तो उस स्टेट को हम कहते हैं टोटलिटेरियन स्टेट। मतलब स्टेट का एग्जिस्टेंस ही सब कुछ है, स्टेट के पावर से सब कुछ है, इंडिविजुअल्स हैज़ नो इम्पोर्टेंस ऑफ देयर ओन। तो इस तरह के स्टेट को हम टोटलिटेरियन स्टेट कहते हैं, जो कि टोटली डेमोक्रेटिक नहीं होती, अनडेमोक्रेटिक होती है, ऑथोरिटेरियन होती है। एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट राइट्स। तो राइट्स की जब भी हम बात कर रहे हैं तो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ही राइट्स की बात होती है, और इस तरह की कंट्री में हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टेट अपने अथॉरिटी को इस तरह से एक्सरसाइज करे कि लोगों के पावर्स में लोगों के राइट्स को वो कर्टेल कर दे। ओके, एंड नाउ इन on page number 70, one box is given. In the box the views of German philosopher Immanuel Kant regarding the human dignity is given. So I am going to read this view of Immanuel Kant on human dignity, page number 70. It is given in the box. Okay, everything has either a price or a dignity. What has a price is such that something else can also be put in its place as its equivalent. By contrast, that which is elevated above all price and admits of no equivalent has a dignity. So this is the opinion of Immanuel Kant. He says that everything has a price और डिग्निटी। ओके, जब किसी चीज़ का प्राइस होता है तो क्या होता है, उस प्राइस जिस चीज़ की भी प्राइस होती है हम उसको ख़रीदा हमने, सपोज वो चीज़ हमारी ख़राब हो गई, वी कैन परचेज अनदर वन, या फिर उसका इक्विवेलेंट भी हमें मिल सकता है। तो जिस चीज़ की भी प्राइस होती है उसका सब्स्टिट्यूट हमारे सामने अवेलेबल होता है, उसका इक्विवेलेंट हमारे सामने अवेलेबल होता है। अगर वो चीज़ एक बार हमसे ख़राब भी हो गई, टूट गई, वी कैन गेट इट अगेन। बट डिग्निटी जो है वो उसको हम प्राइस से नहीं ये कर सकते। डिग्निटी का कोई प्राइस नहीं होता है कि इतने पैसे में हम अपनी डिग्निटी किसी को दे दें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। डिग्निटी जो है वो इन सब से ऊपर होती है, जिसका कोई इक्विवेलेंट नहीं होता है। एक बार डिग्निटी जो है, अगर हमारे डिग्निटी पर किसी तरह का हर्ट होता है तो फिर उसका कंपनसेट नहीं हो पाता है। तो डिग्निटी एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई प्राइस नहीं होता है, ह्यूमन डिग्निटी। Human beings, unlike all other objects, possess dignity. Human beings, this is the difference between an object and a human being. एक ऑब्जेक्ट के पास क्या होती है, यूटिलिटी होती है, एक मार्कर है, इट हैज़ द यूटिलिटी कि ये इससे हम बोर्ड पे लिखते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी यूटिलिटी होती है, बट ह्यूमन बींग्स की यूटिलिटी नहीं होती है। यूटिलिटी जो होती है दैट इज़ अनदर थिंग। जो ह्यूमन बींग है उसको उसकी डिग्निटी होती है, हम उसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम एक ह्यूमन बीइंग को उसकी यूटिलिटी के लिए सिर्फ हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज़ वाई जैसे स्लेवरी का जो सिस्टम था, पहले स्लेवरी चलती थी, उस कंडीशन में क्या था,
स्लेवरी में जब जो स्लेव्स होते हैं, दे वर नॉट कंसिडर्ड एज ह्यूमन बीइंग, they were considered as objects because they were considered as property of their masters. वो अपने मास्टर की प्रॉपर्टी होते थे और मास्टर उनको जैसे चाहे उनके साथ जो चाहे ट्रीटमेंट करते थे. they were not having any kind of their independent view because they were treated as object. तो this is ह्यूमन बीइंग. जब भी हम ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में हमारा बर्थ हुआ है तो हमारे लाइफ की कुछ डिग्निटी होती है, एंड वो डिग्निटी जो होती है उसको हम यूटिलिटी के साथ किसी तरह से इक्वेट नहीं कर सकते. दे आर फॉर दिस रीजन वैल्यूएबल इन देमसेल्व्स. For the 18th century German philosopher Immanuel Kant, this simple idea had a deep meaning. Okay, Immanuel Kant is of the view that this human being possesses dignity, and this he gives a lot of importance to this view. It meant that every person has dignity and ought to be so treated by virtue of being a human being. हर ह्यूमन बीइंग की लाइफ की डिग्निटी है और हर ह्यूमन बीइंग के साथ हमें वैसे ट्रीट करना है कि because he or she is a human being, so he must be treated by taking into consideration the fact that he or she is a human being. हम ये सोच के उसके साथ हमें बिहेव करना है कि वो एक ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन लाइफ की डिग्निटी होती है, तो हमें उसके साथ उसी हिसाब से बिहेव करना है. अ पर्सन मे बी अनएजुकेटेड, पुअर और पावरलेस. ही मे इवन बी डिसऑनेस्ट और इमोरल. हर तरह की बुराई हो सकती है, वो डिसऑनेस्ट भी है, इमोरल भी है. Other than this, he is poor, he is uneducated, powerless, influenceless. Still, he remains a human being. ये सारे चीज़ों के बावजूद he is still a human being. So, he deserves to be given some minimum dignity. कुछ एक मिनिमम लेवल ऑफ डिग्निटी है जो कि हमें उसको देना पड़ेगा. इन स्पाइट ऑफ हिज बीइंग इमोरल और डिसऑनेस्ट, देन पुअर, पावरलेस, अदर देन ये सारी चीज़ें हैं उसके पास, लेकिन फिर भी हमें उसे ह्यूमन बीइंग के तौर पे ही उसके साथ बिहेव करना होगा. फॉर कांट, टू ट्रीट पीपल विद डिग्निटी वॉज टू ट्रीट देम मॉरली. It is our moral duty to treat every humankind with dignity. It is the view of Immanuel Kant. This idea became a rolling point for those struggling against social hierarchies and for human rights. So this view of Immanuel Kant was supported by people who were there fighting against the social hierarchies, who were fighting against the social inequalities. कि just because of being a human being, we must be treated with dignity. Kant views represent what is called the moral conception of rights. Rights हमें क्यों मिलना चाहिए? There is some moral reason behind the rights. This position rests upon two arguments. What is the moral reason behind the right? Two reasons are there. First, we should be treating others as we would like to be treated ourselves. जैसे हम अपने लिए चाहते हैं कि हमारे साथ कोई ट्रीट करे, वैसे ही हमें दूसरों को भी ट्रीट करना चाहिए. अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारे साथ हमें डिग्निटी के साथ हमारे साथ ट्रीटमेंट करे, then we should also treat others with dignity. That is one of the moral reason why we should treat people with dignity. Second, we should make sure that we don't treat the other person as means to our ends. Second thing, what Kant says that we should not treat human being as object. जैसे object को हम use करते हैं because of its utility. We can't use human being. Human being has also utility, but that utility should not be used by us. They should be given dignity instead.
that is, we should respect people not because they are useful to us but because they are after all human being. तो respect देने का reason ये नहीं होना चाहिए कि वो बहुत powerful इंसान है, वो बहुत rich है, हमारे काम आ सकता है तो हमें उसके साथ अच्छा behavior करना चाहिए. This should not be the reason बिहाइंड गिविंग डिग्निटी टू एनीवन. अगर हम ये सोचकर किसी को डिग्निटी देंगे कि वो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है और उससे हम अगर अच्छा बिहेव करेंगे तो फिर हमको उससे फ़ायदा होगा, तो हम उसको वी आर नॉट कंसिडरिंग द पर्सन एज ह्यूमन बीइंग बट हम उसको एक ऑब्जेक्ट बना दिए. एंड इन दैट सिचुएशन जो पुअर होंगे, जो पावरलेस होंगे, उनको हम डिग्निटी नहीं देंगे, क्योंकि हम तो डिग्निटी इसलिए दे रहे हैं रिच पीपल को, इन्फ्लुएंशियल पीपल को, क्योंकि वो हमारे काम आ सकते हैं. बट जो पावरलेस है, जो पुअर है, उनको डिग्निटी देने का की क्या ज़रूरत है, वो तो हमारे किसी काम नहीं आएंगे. इन जनरल यही होता है हमारी सोसाइटी में. वी एक्सपीरियंस द सेम थिंग कि जो इन्फ्लुएंस जिसका कुछ भी नहीं है, जिसके पास कोई पावर नहीं है, जो पुअर है, उसको उसकी डिग्निटी भी नहीं मानी जाती है कि उसकी क्या डिग्निटी है, उसके साथ कुछ भी ट्रीट करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट वी फॉरगेट दैट ही इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग. And this is the point which is said by Immanuel Kant कि हमें सिर्फ ये सोचना है कि वो ह्यूमन बीइंग है. हमें ये नहीं सोचना है रिच है, पुअर है, पावरफुल है, पावरलेस है, इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस नहीं है. नो, दीज आर नॉट द क्राइटेरिया. ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, इवन हमें ये भी नहीं सोचना है कि वो बहुत ऑनेस्ट है तो हमें उसके साथ अच्छा ट्रीट करना है, वो डिसऑनेस्ट है तो उसके साथ नहीं ट्रीट करना है, बिकॉज डिसऑनेस्ट है फिर भी वो एक ह्यूमन बीइंग है. So this is the morality behind this idea of dignity, and that is the beauty of this idea of Immanuel Kant. Okay, and now we will proceed to another segment of this chapter, and that is kinds of right. Kinds of rights. Okay, there are various kinds of rights, and we will discuss about this. Most democracies today begin by drawing upon a charter of political rights. Political rights give to the citizens the right to equality before law and the right to participate in the political process, because today's world is the world of democracy. All the country claim to be a democratic country. They may be democratic country, they may not be democratic country in actual sense, but they claim to be a democratic country. और इस कारण से the first right about which we have started our discussion is political right. And what comes under political rights? The most important political right is right to participate in the political process. Political process means जैसे elections होते हैं डेमोक्रेसी में, we cannot think of democracy without election. तो elections में हमें right to vote होता है, then right to contest elections होते हैं. These all come under this right to participate in the political process. ये सारे rights जो हैं आज के समय में हर country, हर democratic country अपने citizens को देती है. And the second is a right to equality before law. So right to equality before law means कि everyone is equal in the eyes of law. Anyone may be rich, may be poor, may belong to upper caste, lower caste. These things does not matter for law. Law की नज़र में सभी समान होते हैं.
This is the concept of equality before law, and that is why you must have seen the जो कानून की जो स्टैचू होती है, लॉ की स्टैचू जो होती है, जो कोर्ट्स में होती है, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है कि कानून ये नहीं देखता कि उसके सामने कौन है कौन नहीं है, उसकी क्या पोस्ट है, क्या स्टेटस है, क्या उसकी इकोनॉमिक कंडीशन है, क्या उसका कास्ट है, क्या कलर है, क्या जेंडर है। कानून जो है वो सिर्फ सबूत देखता है, उसके हाथों में एक वेट होता है, तो वो सिर्फ सबूत, प्रूफ्स, एविडेंस, विटनेस के बेसिस पे सारे डिसीजंस होते हैं। किसी का क्या स्टेटस है उस पर, उसके लिए तो वो तो दिखता ही नहीं है कानून को, क्योंकि उसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है। तो दिस इज द राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। वी विल continue our discussion in the next class.